میں گزرے ہوئے 10,000 برسوں سے انسان کے لیے ناگزیر رہا ہوں. شاید اسی لیے انسانوں نے میرے گیت گائے، رقص کے بھید بھاؤ میں مجھے دکھایا، مجھ پر شاعری کی اور مجھے مصور کیا. میری بات تو بس وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی انگلیاں سرخیز اور سوندھی خوشبو والی گہری رنگت کی مٹی کے پرکیف لمس سے آشنا ہے. امید کی وہ سنسنی خیزی کہ جلد ہی دھرتی پر نئی سرسبز فصلوں کی بہار ہوگی، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. گزشتہ 500 برسوں سے میرا بے اندازہ استحصال ہوا. اب میں ایک گمنام کسان عورت ہوں. اب میں ایک فنا ہوتی ہوئی نسل ہوں، اسی طرح جیسے 1 یا 2 ایکڑ کے خاندانی کھیت معدوم ہو رہے ہیں. قدیم زمانوں میں ہم اناج نہیں اگاتے تھے، ہم فطرت کی عنایتوں کو صرف اکٹھا کرتے تھے. جانوروں کو کھاتے ہوئے دیکھ کر ہم نے یہ جانا کہ کون سی چیز کھائی جا سکتی ہے اور کون سی زہریلی ہے. پک جانے پر ان کا اکٹھا کرنا آسان ہوتا تھا، لیکن موسم جب ختم ہو جاتا تو ہمیں اناج کی تلاش میں بہت دور تک جانا پڑتا تھا. ہر جگہ ایک جیسی چیزیں نہیں اگتی تھیں. بارش والے اور خشک علاقوں میں الگ الگ اناج اور پھل پائے جاتے تھے، پہاڑی علاقوں میں کچھ اور، میدانی علاقوں میں کچھ اور، لیکن ان کی رنگا رنگی حیران کن تھی. ایک ہی پھل یا سبزی یا اناج کی درجنوں یا سینکڑوں یا ہزاروں قسمیں تھیں. ان قسموں کا تعین مقامی مٹی، آب و ہوا، زمین کی بلندی، پانی اور ان کے گرد پائے جانے والی دیگر نباتات اور حیوانات سے ہوتا تھا. اور یہی وہ زمانہ تھا جب ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ زندگی کتنی آسان ہو جائے اگر ہم اپنی پسند کی ساری چیزیں کسی قریبی جگہ پر اگا لیں. لیکن ہم ایسا کس طرح کر سکتے تھے؟ تب ہم نے فطرت کے کاموں کو کچھ اور غور سے دیکھنا شروع کیا. آخر فطرت بھی تو انسانی مدد کے بغیر ہر کام خود انجام دیتی تھی. سال بسال فطرت کا یہ سارا خزانہ لاکھوں جانداروں کی خوراک بن جاتا اور پھینک دیے جانے والے بیجوں سے ایک بار پھر اگاتا. دنیا میں تمام جانداروں کی ضرورت سے زیادہ خوراک موجود ہے. سب سے اہم سبق ہم نے یہ سیکھا کہ کسی ایک فصل کو بہت بڑے علاقے پر کاشت نہ کیا جائے، کیونکہ اگر فصل بیمار ہو جاتی یا اس پر کیڑے حملہ کرتے تو ساری فصل متاثر ہو سکتی تھی. یہی وجہ تھی کہ فطرت صرف ایک فصل نہیں بلکہ طرح طرح کی فصلیں پیدا کرتی ہے. ہم نے فطرت کی دانائی کی پیروی کی. ہر پودے کی اپنی منفرد غذائی ضرورتیں ہوتی ہیں. جو شے ایک پودا استعمال نہیں کرتا وہ دوسرے کے استعمال میں آتی ہے. ایک فصل جب میلوں تک پھیلی ہوئی ہو تو وہ زمین میں سے ایک طرح کی غذائیت حاصل کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ غذائیت ختم ہو جاتی ہے اور زمین اس فصل کو دوبارہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی. آج لوگ ختم ہو جانے والی اس غذائیت کو کیمیائی کھاد کے ذریعے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیمیائی کھاد کے ذریعے چند برسوں تک بہتر فصل پیدا ہوتی ہے، تاہم زمین کے اندر موجود فطری زندگی کی مدد کے بغیر ایسا ممکن نہیں. اور یہ کیمیائی کھاد کیچووں اور دیگر نظر نہ آنے والے ان اہم کیڑے مکوڑوں کو مار ڈالتی ہے جو نمو کے لیے ضروری ہے. دنیا کی تمام کیمیائی کھادیں بھی مردہ زمین سے پودے نہیں اگا سکتی. سچ ہے، صرف زندگی ہی زندگی کو پیدا کر سکتی ہے.
آج بڑے بڑے کھیتوں میں بس کوئی ایک فصل کاشت کی جاتی ہے اور یہ فصل بھی پہلے کے نسبت بہت کم ہوتی ہے۔ مشینوں کے ذریعے واحد فصل کی کاشت سے زمین کی تباہی کا ایک شیطانی چکر بن جاتا ہے۔ غیر ضروری آبپاشی مٹی کو تباہ کرتی ہے۔ پانی اتنا زیادہ جمع ہو جاتا ہے کہ اس میں سے ہوا یا آکسیجن گزر نہیں سکتی۔ پانی زیر زمین نمک کو سطح زمین پر کھینچ لاتا ہے، جس سے نشو و نما ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی زمینیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ سیم اور دھول کی وجہ سے زیادہ جتنا بھی ہم محنت کرتے ہیں وہ ہمارا خرچہ پورا ضائع ہو جاتا ہے، اور ہماری معیشت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور ہمارا جو گزر سفر ہے غریبوں کا متاثر ہو رہا ہے۔ انسانوں نے جب تک فطرت کے ضابطوں میں مداخلت نہیں کی تھی، فطرت کی رنگا رنگی برقرار تھی۔ لیکن جب لوگوں نے جنگلوں کو صاف کرنا اور وسیع علاقوں پر محض چند فصلوں کو کاشت کرنا شروع کر دیا تو اس نے ماحول کو یکسر تبدیل کر دیا اور اسے مستقل تباہی سے دوچار کرایا۔ ہم نے جانا کہ جنگلی حیات فصلوں کو ہرا بھرا رکھتی تھی۔ یہ جاندار کھاد مہیا کرتے اور بیج بکھیرتے تھے۔ دنیا میں ایسے کیڑے مکوڑے یا پرندے پائے جاتے ہیں جو مخصوص فصلوں کو نقصان پہنچانے والے حشرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ سو ہم نے انہیں لبھانے کے لیے ان کی پسندیدہ فصلوں کا اضافہ کیا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ فطرت سے حاصل کرنے کا سلسلہ کب روک دینا چاہیے اور کب اسے تنہا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی توانائی بحال کر سکے اور پھر سے جوان ہو سکے۔ فطرت بھی انسان کی طرح ایک زندہ شے ہے۔ اسے بھی فصلیں اگانے اور پھل پھول لانے کے درمیان آرام کی ضرورت ہے۔ لوگ اگلی فصل کے لیے بہترین بیجوں کا انتخاب کرتے اور آپس میں بیجوں کا تبادلہ کر لیتے، جس سے فصل بہتر ہوتی۔ سخت جان بیج نئے ماحول سے مطابقت پیدا کرتے اور یوں سبزیوں اور اناج کی نئی قسمیں پیدا ہوتی۔ ایک کنالا کتنا بھی پیسی؟ یہ 6 کلو بھی پیسی جی کنالا میں بھی پیندا نا۔ اچھی فصل دا بھی جڑی ہے رکھیا اساں۔ اس نے جو موسم آسے موسم میں تاں رسو ہاں جی بلاتی پاپا نے کری پانی اساں دے بلاتی پانی دے ساں تاں کو تباہ چڑی اسی گئی۔ ولایتی پا دے خلاف اسی کرانی پا استعمال کرنے ہیں، کرانی گو اسی استعمال کرنے ہیں۔ میں کہ بلاتی پا کے میں نا نا اسی ولایتی پا نے اسی خلاف ہاں زیادہ۔ سبزیاں لانے ہیں اپنی پٹی پہ پھر ہوندی ہے، پھر اس تو بعد بیچو رکھنے ہیں بھی، پھر موقع آندا ہے پھر لانے ہیں۔ یہ بیج جڑے نے ساڈے کول جی یہ برانی بیج نے، اور اگر بارش کی کمی ہوئے تو یہ بیج جڑے نے ساڈے کول گرمی نوں برداشت کر سکنے، اور جڑے اسی باہروں آنے زرعی بیج منگانے ہیں وہ بیج ساڈے کول ایک گرمائش برداشت نہیں کر سکنے۔ یہ ساری اس عمل میں پہنچے ہیں کہ یہ بیج ہے اگر یہ بیج اسٹور سارے ختم ہو جائے گا تو آنے والے ساری زمینیں جو بنجر قدیم ہو جائے گی۔ دیسی کھاد میں فصل اچھے ہیں، طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، ہمیں صحت بچانے کے لیے دیسی کھاد استعمال کرنی ہے۔ اصل اباء و اجداد زمانہ قدیم تو کھیتی باڑی کرنے آئے نے، وہ دیسی ولایتی ساری کھادا استعمال کرنے، اس نتیجے تے اسی ہن پہنچے ہیں کہ اگر اسی اپنے دیسی طریقے چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے فرٹیلائزر کھاد وغیرہ اساں دے وقتی طور تے پیداوار زیادہ مہیا کرنی، لیکن وہ پھر صرف وقتی ہونی ہے، اس نے تسلسل برقرار نہیں رہنا۔ اگر تسلسل برقرار ہے آئندہ نسل ساری کے کھاسی، لہٰذا اساں چاہیے کہ اسی اتھے ہی اپنا دیسی استعمال کراں، کھاد بیج جو کچھ اساں دیسی طریقے استعمال کراں تے اساں یہ تسلسل منتقل ہو رہا سی آئندہ نسل تک۔ اگر اسی اس گلاں تے گئے فرٹیلائزر تے ملٹی نیشنل زیادہ پیداوار ہوسی تے یہ تو کچھ وقت اسی پھر زمینیں ساڈیاں خراب ہو سن، بنجر ہوئے سن۔ جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر ہم نے پودوں کے نئے استعمال سیکھے۔ شاخوں یا تنوں یا چھال یا پتیوں سے ہم نے کارآمد اور سجاوٹ کی چیزیں بنائیں۔ جڑی بوٹیوں اور مسالوں نے کھانوں کا خوشگوار ذائقہ دیا اور جاں فضا خوشبوؤں سے فضا معطر ہوئی۔ سب سے اہم،
दुख दर्द में काम आने वाली जड़ी बूटियां थी। लोग आज ये भूल चुके हैं कि फितरत हमारी तमाम जरूरतें पूरी करती है और हमें राहत पहुंचाती है, खा हमने फितरत के इस काम में दखल अंदाजी की हो या ना की हो। हम कुदरती जंगलों का वसी रकबा हमेशा गैर इस्तेमाल शुदा छोड़ देते थे। अपने खेतों पर उगने वाले अनाज के एक हिस्से को हम जानवरों का खाजा बन जाने देते थे, इसलिए कि ये जमीन हमने उन्हीं से तो छीनी थी। हम एक पेड़ काटते तो उसके बदले में 2, 3, 4, 5 पेड़ बोते। अगर पेड़ ऐसा होता जिसकी नशोनुमा और फल लाने में तवील अरसा लगता हो तो हम ज्यादा पेड़ बो दिया करते थे। जंगल में चरिंद परिंद सभी को पनाह मिलती है, वहां सभी फलते फूलते हैं, वहां जिंदगी की रंगारंगी है। हम फितरत के दस्ते नगर हैं, लेकिन उसे हमारी जरूरत नहीं है। ये जानकर हमारे सर झुक जाते हैं कि जमीन पर इंसान का वजूद ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन फितरत के लिए वो बेहद तबाहकुन साबित हुआ। 50 साल पहले ये इलाका तबाह हो गया था। तबाह होने की वजह से हमने अपने गांव वालों के साथ मशवरा किया था कि भाई अगर आप चाहें तो इस गुजारे को हम दोबारा फिर आबाद करें। तो इसलिए हमने इसको फिर आबाद किया, कोशिश की, रात दिन अपनी मेहनत की, लोगों ने मेरे साथ तामन किया, तो इसको खुदा के फजल से फिर हमने आबाद किया जो आपकी नज़रों के सामने है। इस इलाके में हज़ारों हैं जड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, जो ये पुराने लोग जानते हैं, अपने इलाके को जानते हैं, जड़ियों बूटियों को भी जानते हैं। ये गरीब लोग हैं, अस्पतालों के इलाज तो नहीं करा सकते, अक्सर यही जड़ियाँ बूटियाँ ये इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह ताला इनको शिफा देता है। तो जब ये मिट्टी, ये ज़मीन, ये दरख्तें, ये झाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो नीचे से जो चट्टान निकलेंगे उसमें ना कोई दरख्त हो सकता है, ना कोई आबादी हो सकती है, ना कोई सब्ज़ा पैदा हो सकता है। हमने कभी जमीन का कोई हिस्सा खाली नहीं छोड़ा, क्योंकि वो मिट्टी जो जमीन के साथ पेवस्त नहीं होती, उसे या तो हवा उड़ा ले जाती है या वो बारिश में बह जाती। लिहाजा हमने फसलों के दरमियान में फसलें उगाना शुरू कर दी, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30 या 40, और इसके नतीजे में हमें अनाज के अंबार मिले। इसके अलावा हम अनवाओ अक़साम की चीजों से लुत्फ हासिल करना चाहते थे, और शुक्र है कि रंगारंगी और तनव्वुर फितरत को रास आती है। काश्तकारी के लिए जिस्मानी मेहनत की जरूरत होती थी, ताहम ये जिस्मानी मुशक्कत नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थी। ये जदीद दौर से बहुत मुख्तलिफ थी। हम साल भर मुख्तलिफ फसलें उगाते और साल भर काम में मसरूफ रहते। चंद फसलें एक ही वक्त में काश्त की जाती थीं, लेकिन वो मुख्तलिफ औकात में कटाई के लिए तैयार होती थी। दीगर फसलों की बुआई और कटाई का वक्त भी मुख्तलिफ होता था। इस तरह हम हमेशा काम में मसरूफ रहते, लेकिन ये काम कभी भी बहुत मेहनत तलब नहीं होता था। ऐसे में अगर चंद फसलें खराब भी हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, दूसरी बहुत सी फसलें हमें हासिल होती थी। इब्तिदाई सदियों में हमें चारा उगाने की जरूरत पेश आई। मवेशी चरागाहों में चलते और यूं फितरत से उन्हें बराह रास्त खुराक मिल जाती। किसी भी किस्म की खुराक, हत्ता के पौधों के इस्तेमाल में ना आने वाले हिस्से भी ज़ाये नहीं जाते थे। ये सब चीज़ें बावर्ची खाने की फाजिल चीज़ों, झूठे और बचे हुए खाने और गिरे हुए पत्तों में मिलकर मिट्टी को दोबारा से सरखेज बना देती थी। 35 तो 60 फुट तक खड्डा होसी, तो उस विच है कि तुसदी खाद 35 दिनां विच गल के तैयार हो जुलसी। इस विच लाना वास्ते है कि 210 लीटर पानी कनो, उस पानी में 2 औंस गंधक और 2 औंस कलमी शोरा बा के पीस के और 2.5 किलो चूना बा के तुसी एक बारी छिड़क दियो, तो फिर 6 दिन उसको मुसलसल पानी दो। हर शय खड्डे विच पार के पत्ते छत्ते सब्जियां दी कुतरान फुल के जिस वक्त वो नरम हो जाए, उस तो बाद उसके ऊपर प्लास्टिक बा के ऊपर मिट्टी बा छोड़ो, इस तरह इतनी ज्यादा कि लीकेज ना होवे।
आज तक कोई ऐसी इजाद नहीं की जा सकी है जो केचुओं का काम अंजाम दे सके। गिरी हुई पत्तियां, डंठल और शाखें, गले सड़े फल, फुजला और मुर्दा जानवर जब सड़ जाते हैं तो केचुए इन्हें मट्टी में मिला देते हैं और इन्हें ऐसी शक्ल में तब्दील कर देते हैं जिसे पौधे आसानी से अपने अंदर जज्ब कर लें। पौधे ये काम खुद अंजाम नहीं दे सकते। हल हमें कम से कम चलाना पड़ता था, क्योंकि फितरत ने नागुज़ीर केचुए की शक्ल में हमें एक जिंदा ट्रैक्टर जो फराहम कर दिया था। इसके बगैर हम कहाँ होते? कहीं नहीं। चीजों को खाते हुए केचुए जमीन में सुरंग सी बना देते हैं जिससे मिट्टी नरम पड़ जाती है। हर केचुआ अपनी जिंदगी में सैकड़ों मील लंबी सुरंगें तैयार करता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर पानी, ऑक्सीजन और फैलती हुई जड़ें अपना रास्ता बनाती हैं। जड़ों को भी सांस लेने की जरूरत होती है। कोई मशीन इतने वसी पैमाने पर इतनी अरकरेजी से इस काम को अंजाम नहीं दे सकती, और वो भी एक पैसा खर्च किए बगैर। इस अमल को तेज करने के लिए हमें सिर्फ उन चीजों को जमीन में दफन करना होता था। हम मट्टी से पैदा हुए हैं और इस मट्टी में वापस लौट जाएंगे। जैसा ये इंसान के लिए है वैसा ही फितरत के लिए भी है। इंसान भी फितरत की लाफानी गर्दिश का एक हिस्सा है। अमा यो बिजू पंजो मां संभालियो रखियो थी अचा चाचे करे जो ही बिजू जेको आहे ना हिनमल जेको ऐसो मिलत है बिच में जो वरी भी है फुटे न तो अमा पंजो बिजू संभालियो रखियो थी अचा जो है। इस दौरान जो इल्म हमें हासिल हुआ वो हमारी याददाश्तों में महफूज होता गया। ये इल्म हर पिछली नस्ल से अगली नस्ल को मुंतकिल होता रहा, लेकिन इसके बावजूद हर फर्द के लिए फितरत के तौर तरीकों का मुशाहिदा करना, उसे समझना और उसकी कद्र कीमत का जानना जरूरी था, ताकि वो फितरत के तकाज़ों से हम आहंग होकर जिंदगी बसर कर सके। फितरत से सीखने के लिए खुले मैदान, खेत और खलियान बच्चों के लिए सीखने की सबसे अच्छी जगह थी। आज के बच्चे, यहाँ तक कि देही इलाकों के बच्चे भी इस सहूलत से महरूम कर दिए गए हैं। फितरत ने हमें फायदा पहुंचाने, नई जिंदगी और तवानाई अता करने का काम किया। जो हुकूमत पॉलिसी साजी करती है उसमें गरीब किसान जो है उनकी आवाज़ शामिल होए और फैसला साजी जो हो वो उनके मशवरे आज चंद बेपनाह बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास दुनिया की ज्यादातर हुकूमतों से कहीं ज्यादा सरमाया और ताकत है। वो पूरी दुनिया की जमीनों को अपने इख्तियार में ले रही हैं ताकि उन पर मुनाफा बख्श फसलें पैदा करें। वो दूसरों की मिल्कियत पर अपना हक जता रही हैं ताकि लाखों लोगों का सरमाया मुट्ठी भर अफराद के कब्जे में आ जाए। इसके साथ ही गैर मुल्की कंपनियों को सहूलतें भी हासिल होंगी। हमारे गरीब किसानों से टैक्स वसूल किए जाते हैं, जबकि गैर मुल्की कंपनियों को अपनी ज़मीनें देकर भी उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किए जाएंगे। लेकिन कॉरपोरेशनों को हमारे हालात से कोई दिलचस्पी नहीं। वो हमारा इल्म हमसे चुरा चुकी हैं और अब उन्होंने इसे अपनी मिल्कियत बना लिया है। उनकी नज़र में अब हम मुख्तलिफ नस्ल, रंग और सकाफत के हामिल फजूल से लोग हैं। दुनिया की 6 अरब आबादी में गालिबन सिर्फ 1 अरब लोग ऐसे हैं कि जो चाहें वो खरीद सकते हैं। दूसरे 1 अरब इंसान बमुश्किल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के काबिल हैं। बाकी रह गए हम जैसे अफराद, तो वो सिर्फ घास खा सकते हैं, वो भी अगर ये कॉरपोरेशनें जमीन पर सलामत छोड़ जाएं तो। हुक्काम खाह इसे तस्लीम ना करें, लेकिन सच यही है कि कहत हमारी दहलीज पर पहुंच चुका है। पुरवकार और इज्जत नफ्स रखने वाले लोगों ने बाइज्जत जिंदगी के लिए हमेशा सख्त मेहनत की है। उनके लिए अपनी जबान से भूख का एतराफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यही है
की भूख मौजूद तो है। कई 100 बरस पहले ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब यूरोप के लोगों ने अपनी नौ आबादियात की ज़रई ज़मीनों का इख्तियार अपने हाथों में लेना शुरू किया। काबिज़ीन ने यक फसली काश्त मुतारिफ कराई, यानी वसी इलाके पर वाहिद फसल उगाना शुरू की, क्योंकि उन्हें अपने कारखानों के लिए गेहूं, कपास और नील के पौधों जैसी मखसूस फसलों की जरूरत थी। बेहतरीन जमीनों को यूरोप बरामद की जाने वाली फसलों की काश्त के लिए मखसूस कर दिया गया। मेहनत मजदूरी पंहिंजी आबादी पोखियूं त बि मेहनत मजदूरी कयूं, माल जो कखो पन कयूं। वो जमींदार आसी गरीब छासी। किसानों को न सिर्फ काबिज़ीन के तकाजों के मुताबिक ही फसल काश्त करना पड़ती थी, बल्कि उस पर उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था। इससे पहले सिर्फ 1/3 फसल बतौर टैक्स ली जाती थी, लेकिन काबिज़ीन ने मालिये के तौर पर 2/3 से 3/4 फसल लेना शुरू कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि किसान न तो अपने खानदान की जरूरत के मुताबिक खुराक पैदा कर सकते थे और न फाजिल गल्ला बचा पाते थे जिसे बेचकर वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते। किसान मकरूज होकर अपनी जमीनों से महरूम होते चले गए और कर्ज खा और लगान वसूल करने वाले इन जमीनों को खरीदकर बड़े बड़े गैर हाजिर जमींदार बन गए। उन्होंने हमारा इक़्तिदार आला और मुंह का निवाला दोनों छीन लिए हैं। हमारे बच्चों की भूख भी उन्हें मुतासिर नहीं करती। उन्होंने लालच में आंखों पर पट्टी बांधकर यह कारोबार शुरू कर दिया है। वो जालसाजी से हमारी जमीनों को छीनकर ग़िज़ाई अजनास पैदा कर रहे हैं। और क्या सितम है कि हम में से ज्यादातर लोग उन अजनास को खरीदने की सकत नहीं रखते जो वो बेच रहे हैं, क्योंकि हमारा रोजगार उन्होंने हमसे छीन लिया है। मगरबी ज़रई साइंस के जरिए भूख के खात्मे और पैदावार में इजाफे की साइंस के नाम पर दुनिया भर में यकफसली बुनियाद पर गंदम या चावल के बीज मुतारिफ कराए गए। दावे के मुताबिक इससे दुगनी या इससे भी ज्यादा पैदावार होना थी, लेकिन इसके लिए कीमियाई खादों और कई गुना ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती थी। इसके बगैर इनकी पैदावार आम बीजों से भी कम होती थी। चूंकि चंद साल इन बीजों से पैदावार में इजाफा हुआ, लिहाजा इसे सब्ज इनकलाब का नाम दे दिया गया और यह सब कुछ लाखों किसानों के रोजगार और जिंदगियों की कीमत पर हुआ। ये सब्ज इनकलाब न सब्ज था और न इनकलाब, ये महज तबाही थी। इससे पहले हम देसी खाद इस्तेमाल करते थे। वो खाद का कम अज कम 3 साल असर रहता था। जब ये वलैती खाद चली है, शुरू से तो हमने इससे फायदा कि थोड़ी सी इस्तेमाल की और फसल बहुत ज़्यादा हुआ, मगर एक साल जो जहाँ पर 1 किलो इस्तेमाल की है, दूसरे साल वहाँ पर 1 किलो इस्तेमाल की है फसल नहीं हुआ है, वहाँ 2 किलो इस्तेमाल करनी पड़ी। तीसरे साल 2 के बजाय वो 3 किलो इस्तेमाल करनी पड़ी। मुख्तलिफ किस्म के जंगली परिंदे थे जो इन कीड़े मकोड़ों को खा जाते थे, जो कीड़े सब्जी को नुकसान पहुँचाते थे। इस वलैती खाद की वजह से वो परिंदे ख़त्म हो गए और वो कीड़े जो थे वो ज़्यादा जोर पकड़ गए थे। सब्ज इनकलाब का नतीजा 1 दहाई से भी कम अरसे में तबाही की शक्ल में सामने आया। आम बीजों के मुकाबले में ज्यादा पैदावार का दावा गलत साबित हुआ, क्योंकि मुमासिलत का दावा ही गलत था। रिवायती काश्तकारी में जमीन के एक ही टुकड़े पर दरमियान में जगह छोड़े बगैर कई मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं। हकीकत यह है कि इनकी मजमूई पैदावार ज्यादा फसल देने का दावा रखने वाले बीजों के मुकाबले में 2 से 10 गुना ज्यादा होती है, लेकिन साइंसदान मुआजना करते हुए अपनी फसल के अलावा दूसरी फसलों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इस तरह ही वो ये साबित कर सकते हैं कि रिवायती फसल से बहुत कम गल्ला हासिल हुआ है। हुकूमतों ने इन बीजों का इस्तेमाल लाजमी करार दिया।
पहले किसान खुद अपना मुफ्त का बीज और खाद इस्तेमाल करते थे और अब इन्हें इनकी कीमत अदा करना पड़ती थी। बेशतर किसानों के लिए इन्हें खरीदना मुमकिन न था क्योंकि ये बहुत महंगे थे। इसका फायदा सिर्फ कंपनियों को पहुंचता था, जिनमें से बेशतर मल्टीनेशनल कंपनियां थी। नतीजा ये निकला कि दुनिया भर में करोड़ों किसान जमीनों से बेदखल हो गए और शहरों की जानिब वसी पैमाने पर देही लोगों की नकल मकानी शुरू हो गई। साबिक़ा नौ आबादियात में हर बड़े शहर के गिर्द कच्ची आबादियां अब एक मामूल बन चुकी हैं। दस्त नगरी पैदा की गई। कर्जों की अदायगी के लिए अवाम पर टैक्स आयद करके उन्हें गुर्बत की जानिब धकेल दिया गया। शहरों और खेतों के दरमियान ताल्लुक टूट चुका है। हाँ, आज शहर में रहने वाले बच्चों को ये नहीं मालूम कि फितरत भी किसानों की तरह दम तोड़ रही है। उसे सिर्फ ये पढ़ाया जाता कि मसनूआत क्या है और उनसे कितना मुनाफा हासिल किया जा सकता है। उसे ये नहीं बताया जाता कि वो इन चीज़ों का कितना मोहताज हो चुका है। वो नफ़े की दुनिया की खिदमत के लिए बड़ा होता है और अपने ख़ानदान या बिरादरी की खिदमत भी नहीं कर सकता। अरे उन्हें तो बस यही मालूम कि उन तक जो खुराक और सामान आता है वो महज पैसा अदा करके हासिल किया जाता है। लेकिन ये तमाम हुनर खुराक पैदा नहीं कर सकते। लोगों से वसूल किया जाने वाला टैक्स हो या गैर मुल्कों से लिया जाने वाला कर्ज, इनमें से कोई भी चीज खुराक नहीं उगा सकती। दुनिया की बेशतर जमीनों पर रिवायती बीजों की बजाय दोगली नस्ल के बीजों को इस्तेमाल करके हयातियाती तनव्वुं को शदीद नुकसान पहुंचाया जा चुका है। कुदरती तौर पर उगने वाले पौधों की 3/4 तादाद मादूम की जा चुकी है। यकफसली काश्त नाकाम साबित हुई है। कीमियाई काश्तकारी ने हमारे पानी और हमारी जमीनों को जहर आलूद कर दिया है और हम मजबूर कर दिए गए हैं कि जिंदगी बीमार रहकर गुजारें। आज इन तमाम चीजों को बुरी तरह ज़ाय किया जा रहा है। इनसे जमीन को जरखेज बनाने की बजाय उन्हें प्लास्टिक से बने हुए कूड़े के थैलों में बंद कर दिया जाता है। इस तरह वो मिट्टी का हिस्सा नहीं बन पाते, या उनके बड़े ढेर बनाकर आग लगा दी जाती है, जिससे फिजा गाढ़े और बदबूदार धुएं से भर जाती है और हवा आलूदा हो जाती है। हम इसमें सांस लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। वो वक्त भी आ सकता है जब पूरी की पूरी बस्तियां और इलाके सफाई हस्ती से मिट जाएं। शायद इंसान इसी तरह इस दुनिया को खत्म कर देगा। जब पेड़ नहीं होंगे तो फिर घोंसले भी नहीं होंगे और आसमान इन हजारों परिंदों की परवाजों को नहीं देख सकेगा जो ग़ुरूब आफ़ताब से पहले और बाद नसीम का लुत्फ उठाने के लिए हवा के दोष पर उड़ान भरते नजर आते हैं। हमें कौन बचाएगा? कौन आपको बचाएगा? इंसानों और फितरत दोनों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। फितरत को बचाइए ताकि आपके बच्चे जिंदा रह सकें। क्या आपसे ये उम्मीद रखी जा सकती है? बच्चा जब खुद एक बीज बोता है और उस पौधे की परवरिश करता है, तभी वो उसके फलों का लुत्फ उठाता है। अगली बुआई के लिए बीज हिफाजत से संभाल लेता है। वो फितरत की इनायत को महफूज रखना
जान गया है। फितरत जो कि हमारी ज़रूरतों को हमेशा पूरा करती रही है।